Hello friends, how are you? This is Amit Kumar. So I am going to take lecture of geography. So geography is a very practical subject and geography is very important also for the UPSC prelims as well as mains also. So geography जो एक ऐसा है basically पूरा geography is a practical subject, because we have to know कि behind इसके क्या है. एवरी जो भी इवेंट हो रहा है उसके पीछे ना बिहाइंड इवेंट आपको यू हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द इवेंट. तो इट मीन्स जो आप अगर ये रीजन समझ पा रहे हो इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी इज कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जियोग्राफी है फिजिकल जियोग्राफी इट मीन्स कि ये आपकी होल जियोग्राफी को समझने में हेल्प करेगा. इफ़ यू नो फिजिकल जियोग्राफी इट मीन्स यू नो ऑल अबाउट द जियोग्राफी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बिकॉज व्हाट इज बेसिक ऑफ द जियोग्राफी. डू यू नो I will tell you the first and the basic of the geography, that is fundamental of the geography. What is fundamental of the geography? Fundamental geography, it means latitude, longitude, international declines, regions for seasons, how to earth origin. So that kind of things, how earth was formed, that kind of topics are basic topics. So we will start from the latitude. Do you know you also heard about and you also studied about the latitude, but I think I will let you know how to study about latitude. Latitude is a basic point, but it is very important. Each and every event of the geography depend upon the latitude. So you will think about what is latitude. Latitude, I think it's a big role, right? Latitude का बहुत important role है geography में. So अब आपको first number one is latitude. So this is a very simple word, latitude, and do know everybody knows about the latitude. So simple languages like you will see this is the earth and these lines are latitude. But it is latitude exactly? Only you can say, only you can see these are latitudes, but it is not exactly the meaning of the latitude. Okay, you can't find out the process of the latitude, the events of the latitudes, you don't know. Only you can say latitude is an, what is latitude? Is an imaginary line. Imaginary horizontal lines on the earth, right? Because you will see these are horizontal and these are lines. So that's why latitude is an imaginary horizontal lines on the earth. That is the first condition, and you know very well about this. But now I will let you know what is exactly, what is the points and how you can find, how UPSC ask the questions from the latitude, and how we can say latitude is latitude has a many factors. I will let you know. Number one, you will see this is number one is these are also, you will see latitudes, these lines are parallel. These lines are parallel. First we have to understand
these lines are parallel as well. But it also given in the books the definition of the latitude, but I will prove also why it is given. But I think while you studying, but I think you didn't think about what is the exactly definition of the latitude. So you have studied the definition of the latitude exactly. Latitude is an angular distance of a place from the equator or center of the earth. Okay, but there is a lots of confusion in this definition. इस definition में क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा है कि latitude is an angular distance. Angular कोणीय दूरी है, और यहां पर कह रहा है these are parallels, और आपको मालूम है parallel never meet each other. कभी एक दूसरे से नहीं मिलती पैरेलल, समांतर रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है. तो हाउ इट इज पॉसिबल? एंगुलर कैसे पॉसिबल है? यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कैसे पॉसिबल है कि ये ठीक है. अब मैं आपको बताता हूं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ओके, सो कैसे प्रैक्टिकल है इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं. ठीक है, दिस इज द अर्थ सरफेस and interior of the earth. Okay, अब आपको यहां पर थोड़ा सा सोचना है. यू हैव टू थिंक दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री. ओके, and 23.5 degree Tropic of Cancer, and 66.5 degree that is Arctic Circle, 23.5 degree that is Tropic of Capricorn, and 66.5 that is Antarctic Circle, and 90 degree that is Northern Pole, and 90 degree in south that is Southern Pole. Okay, see this picture. यहां पर कैसी है? These are parallels and these are also creating angular distance. Angular एंगल बना रही हैं, राइट? एंगुलर डिस्टेंस एंड कह सकते हैं दे आर मेकिंग एंगल. एंगल भी बन रहा है एंड पैरेलल भी है. ऑन द सरफेस इट मींस सरफेस पर ये कैसी हैं? पैरेलल है, बट सेंटर ऑफ द अर्थ अगर देखा जाए तो कैसी है? दे आर कमिंग फ्रॉम दी, कहां से आ रहा है?
एक सिंगल पॉइंट से आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर। दैट्स वाई इक्वेटर क्योंकि सेम है नीचे से ऊपर तक, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर से। बट ये इक्वेटर यहां से शुरू होगा तब इसका एंगुलर होगा। तो अब नया जो एक इसमें कंडीशन बनेगा, सो ये कैसी है, दीज लाइन्स आर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर concentric circle, right? Concentric circle because of this concentric circle. Now you can say latitude is an angular distance of a place from the equator or center of the earth. That is exactly what is latitude. Okay? But it is not enough for the latitude, because latitude का मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट रोल है इसका पूरे जियोग्राफी में। कहाँ रेन हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इवेंट कैसे हो रहे हैं, क्लाइमेटिक रीजंस कैसे डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड पर, सारा कुछ इसी पर लोकेटेड है, इसी पर सारा कुछ डिपेंड है। तो इतनी जल्दी थोड़ा ना कोई चीज खत्म हो जाएगी ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ जीरो डिग्री that is equator, 23.5 degree that is Tropic of Capricorn. I told you also Cancer, that is Cancer, Tropic of Cancer, and 23.5 in southern hemisphere, that is Tropic of Capricorn. 66.5 that is Arctic Circle, and 66.5 degree that is Antarctic Circle. 90 degree that is Northern Pole, and 90 degree in southern that is Southern Pole. And you have to know from 0 degree to 90 degree in southern, that is called Southern Hemisphere, and 0 degree to 90 degree in northern side, that is called Northern Hemisphere. Okay. Now, this region is called tropical zone, and 0 degree to 10 degree, somewhere you will find 0 to 10 degree, that is called equatorial zone. This part is called equatorial zone. Okay, both sides, and this is also called tropical zone, and this is temperate zone, and this is a polar zone. Temperate and polar. Okay, so now okay, this is sun. Okay, so now you will see
What you are watching? You are watching, these are sun rays. These are sun rays. ये सन रेज हैं और डायरेक्टली कहां पर गिर रही हैं? इक्वेटर पर। डायरेक्ट इक्वेटर पर धीरे धीरे जैसे जैसे पोलर रीजन पे जाएंगे वैसे वैसे टिल्टेड होती जा रही है। हो रही ना टिल्टेड, है ना, थोड़ा तिरछी होती जा रही, टिल्टेड। सो नाउ, सो इफ आई आस्क कि विच रीजन विल बी वार्मर, कौन सा होगा जो बहुत ज्यादा वार्म होगा, कौन सा होगा जो बहुत ज्यादा गर्म होगा एरिया? तो व्हाट विल यू से? यू विल से सर इक्वेटोरियल जोन, राइट? बिकॉज डायरेक्ट तो इक्वेटर पे आ रही है, देन ट्रॉपिकल पे धीरे 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 ऊपर कम होती जाएगी जैसे जैसे जाएंगे, राइट? रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज ये जो लाइंस आ रही ना यहां पर, क्यों राइट नहीं है? ये राइट है कि एग्जैक्टली क्या है कि ये जो लाइंस है ये इस पे गिर तो रही हैं, डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द इक्वेटोरियल जोन, इक्वेटोरियल जोन पे है, बट फिर भी ये वार्म नहीं है। ट्रॉपिकल जोन इज वार्मर देन इक्वेटोरियल जोन। रीजन बिहाइंड यू हैव टू नो। मैंने कहा ना कि सारा प्रैक्टिकल है, आपको समझना है उस चीज से लेकर। बिकॉज सपोज आपके पास कुछ ऐसी चीज है ना, आप यू नो हाउ टू मेक द टी, कैसे टी बनाते हैं। सो आपने क्या किया, पॉट लिया एंड यू पुट ऑन द गैस। अब जैसे गैस पे रखा, गैस जलाई, व्हाट विल यू सी? यू विल सी एयर, एयर इज मूविंग टूवर्ड्स, किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, यानी मूविंग अपवर्ड। एयर इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? नीचे से क्योंकि गर्म हो रही है। और एक दूसरा, उसमें पानी डाल देंगे तो कैसे जाएगी? एयर मूविंग अपवर्ड विद मॉइस्चर, मॉइस्चर भी लेके जा रही, राइट? ध्यान से दोनों को समझना। बट एक दूसरा है जहां पर आपको क्या हो रहा है, जहां पर आपका एयर तो मूव हो रहा है बट मॉइस्चर नहीं है, दोनों पर। अब उसमें पानी डाल दिया एक में, तो पानी डाला तो वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, गर्म कम हो जाएगा, बट मॉइस्चर लेके जाएगा। और बार बार किसी चीज में पानी डाल रहे हो, फिर हटाओ, फिर पानी डालो, तो वो पॉट क्या हो जाएगा? थोड़ा कम गर्म रहेगा। और जिसमें भले ही थोड़ा सा कम जल रही है, कम वो है, लेकिन वो उसमें वाटर जा ही नहीं रहा, कुछ आप डाल ही नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो बहुत हीट हो जाएगा। थोड़ी देर में आप देखोगे कि पूरा जो पॉट है वो रेड हो चुका है। जिसमें धीमी आग थी, जिसमें ज्यादा आग थी, बट उसमें वाटर बार बार डाल रहे थे, जिसकी वजह से वो उतना हीट नहीं हो पाया। सेम यहां पर भी है, बिकॉज डायरेक्टली गिर रही है यहां पर रेज, डायरेक्ट की वजह से यहां पर क्या होगा? अब यहां साइंस काम करेगा, रीजन हम देखेंगे। सो सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली, फॉलिंग ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर है तो इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर पे आएगा, सो दिस सरफेस विल बी वार्म। एंड यू वेरी वेल, यू नो वेरी वेल कि यहां पर क्या है? ओशियंस हैं, बहुत ज्यादा ओशियंस हैं, सागर ही सागर हैं। ओके, तो ये वार्म होगा, एंड वार्म होगा तो क्या होगा? जब वार्म होगा, जिस प्लेस पर ज्यादा गर्म हो वहां पर नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है। जहां कोल्ड रीजन होगा वहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सो देयर यहां पर क्या हो जाएगा? इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा, विल क्रिएट इंटेंस लो प्रेशर। इंटेंस लो प्रेशर जैसे क्रिएट होगा, सो एयर विल राइज, और वाटर है सो विल राइज विद मॉइस्चर। एयर विल राइज विद मॉइस्चर। जैसे ऊपर ऊपर जाएगी मॉइस्चर, एयर इज मूविंग अपवर्ड नाउ विद मॉइस्चर। बट कहां तक जाएंगे? ये जाएगा 2000 मीटर। दिस इज अ क्या है? ये क्लाउड की हाइट है। क्लाउड इज ऑल्सो डिवाइड इन 3 पार्ट्स, फिर उसके भी अलग अलग पार्ट्स है। तो अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड मिडिल पार्ट। तो दिस इज अ लोअर क्लाउड, दिस इज कॉल्ड लोअर क्लाउड। इन 2000 मीटर में आप देखेंगे
तो you will see कि that is called lower cloud, and also the name of this cloud that is cumulonimbus cloud. Cumulonimbus cloud उसे हम कहेंगे, और यहां पर ये क्या करेगा, एयर मॉइस्चर के साथ, और एयर कब तक राइज होगी जानते हैं कब तक, जब तक यहां पर कोल्ड रीजन नहीं आ जाएगा. जितना वार्म है, वार्म चीज तब तक ऊपर जाएगी ना जब तक कोल्ड नहीं आ जाए. जैसे कोल्ड आ जाएगा वो रुक जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, ये क्लाउड बनाएगा. तो यहां पर एक क्लाउड बनाना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. इन 2000 मीटर. और जैसे ही बनेगा क्लाउड, फिर देन क्या होगा, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन होगा, देन ये क्या होगा, इसके बाद ड्रॉपलेट में फिर नीचे प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश हो जाएगी, रेन हो जाएगा. और ये डेली हो रहा है. ये आप देखें मॉर्निंग में, क्योंकि यहां पर सनरेज ना सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर, सो दैट्स व्हाई दिस जो कंडीशन है थ्रू आउट ईयर रहेगा, थ्रू आउट ईयर रहेगा, कभी चेंज नहीं हो जाएगा, नेवर चेंज थ्रू आउट ईयर. तो मॉर्निंग में यू विल सी कि स्काई कैसा होगा, एकदम क्लियर होगा. देन आफ्टरनून के बाद क्या देखेंगे कि वहां पर धीरे धीरे क्लाउड होने लगेगा. देन इसके बाद इवनिंग में डेली रेन हो जाएगा. ये डेली का प्रोसेस है, और ये चीज डेली होगी. दैट्स व्हाई यहां पर डेली रेन होने की वजह से ये उसकी जो वार्मनेस है ये थोड़ा लेस हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग. और यहां पर रेन कम है जिसकी वजह से ज्यादा वार्म हो. दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल जोन इज वार्मर देन इक्वेटोरियल जोन. बट बोथ रीजन इज, अगर हम दोनों को बात करें, बोथ रीजन आर हीट सरप्लस रीजन. हीट सरप्लस रीजन. बिकॉज बोथ आर वार्म, दोनों गर्म है, तो दोनों सरप्लस रीजन हो जाएगा. बट अगर दोनों में कंपेयर कराया जाए तो यू विल से ट्रॉपिकल जोन इज वार्मर बिकॉज ऑफ यहां पर रेन नहीं है, यहां पर रेन ज्यादा है. नंबर 1. सेकेंड चीज आपको समझनी है, अब यहीं से इक्वेटोरियल जोन, जो आपका क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, यू विल फाइंड आउट. यहां पर इक्वेटोरियल जोन दैट इज ट्रॉपिकल जोन, और यहां पर रेन थोड़ा कम होगी तो डिजर्ट आ जाएगा, डिजर्ट है ना, डिजर्ट क्लाइमेट आ जाएंगे. देन ऊपर जाएंगे चाइना क्लाइमेट एंड ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट, टुंड्रा, टैगा, टुंड्रा, सारे क्लाइमेट्स आपको यहां से यहां तक 12 क्लाइमेट्स हैं जो आपको यहां से लेकर यहां तक मिलेगा, है ना. सो ये सब कुछ इसी पर डिपेंड है. आपके जो एयर प्रेशर पड़ते हैं, एयर, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये ऐसा है. अब यहां पर क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, यू नो. अब ये आपका ट्रॉपिकल जोन है, ये यहां पर इक्वेटर पर डेली रेन हो रहा है. कैसे होगा, डेली रेन होगी. इफ डेली यहां पर अगर रेन हो रही है तो क्या होगा, तो वेजिटेशन ऑफ द इक्वेटोरियल जोन कैसा होगा, एवरग्रीन एंड डेंस. बट ना व्हाट अबाउट एनिमल्स, क्रिएचर. सो आपको यहां पर देखें क्रिएचर्स कैसे होंगे, एनिमल्स कैसे होंगे, वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायंस, राइट. इट्स नॉट राइट, बिकॉज दे नीड, कैसा नीड है उन्हें यहां पर डेली रेन हो रहा है ना. तो एक चीज समझना है, वेजिटेशन तो होगा एवरग्रीन, बट डेली रेन की वजह से यहां कैसा होगा, डू यू नो, स्वाम्पी लैंड, इट मीन्स वेटलैंड. यू विल फाइंड वेटलैंड में लायन है एंड एलिफेंट है एंड वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहते. यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रेप्टाइल्स मिलेंगे. रेप्टाइल्स मगरमच्छ टाइप, है ना, रेप्टाइल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ट्रांसपोर्ट, लंबरिंग. एंड वुड कैसी होगी यहाँ की, बिकॉज ऑफ वाटर, वेटलैंड, तो सॉफ्ट वुड होगी, हार्ड वुड नहीं होगी. नॉट गुड फॉर फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर के लिए क्या जरूरत है, हार्ड वुड जरूरत है, नीड है. सो एक ये नीड हमें जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे कंडीशंस इसमें आप निकाल सकते हो. यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछता, यूपीएससी चाहता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट दैट
स्टेटमेंट एंड देन यू विल एनालिसिस, आप एनालिसिस करोगे, देन आपका एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, देन यू हैव टू आंसर। बट हम इसको सोचते नहीं है, हमको लगता है ठीक है, ओके है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बुक में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। कहीं लाइन बाय लाइन कभी मिला है? नहीं। 20-25 क्वेश्चन हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वही आप कर जाओ, बाकी आपको क्या, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एंड आपको यूपीएससी के तरीके से सोचना होगा। सिलेबस उतना ही है बट फिर भी हम उसको नहीं कर पाते हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें तो सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। देन अब यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन भी वार्मर है, यहाँ पर रेन कम है, इट इज लेस रेन, कैसे रेनफॉल लेस देन इक्वेटोरियल जोन, बहुत लेस है। ऊपर जैसे जैसे आएंगे डिजर्ट भी मिल जाएगा आपको। एंड टेम्परेट जोन एंड पोलार जोन, यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे हीट कम होती जाएगी। दिस रीजन, सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि बोथ आर हीट डेफिसिट रीजन। ये कैसे है, हीट डेफिसिट रीजन है, डेफिसिट रीजन, क्योंकि यहां पर क्या है, हीट कम होती जा रही है। बट डिड यू एवर थिंक अबाउट पोलार जोन एंड टेम्परेट जोन? कभी सोचा है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द पोलार जोन एंड टेम्परेट जोन? नेवर थिंक, कभी सोचा ही नहीं आपने, कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं बता दूं, हीट डेफिसिट इट मींस यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां पर एयर राइज हो रही थी, वहां एयर क्या हो जाएगी, मूव डाउनवर्ड। यहां अपवर्ड हो रहा था, वहां डाउनवर्ड हो जाएगा। इट मींस कि यहां पर क्या है, दीज या कैसे बोथ जोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, प्रेशर सिस्टम एंड प्लानिटरी विंड सिस्टम। विंड सिस्टम हाई प्रेशर, तभी तो प्लानिटरी विंड्स आएंगी। प्लानिटरी विंड्स ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट ईयर बहती हैं। एंड प्लानिटरी विंड्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशियन करेंट्स, क्योंकि यू नो वेरी वेल, ओशियन करेंट्स आल्सो फ्लो in the same direction throughout the year. So दोनों throughout year है, तो it means दोनों का कनेक्शन भी है। लास्ट ईयर यूपीएससी के मेंस में आया भी था कि ये कैसे, what is the relationship between ocean currents and planetary winds. So this is the relation between them. This is the relation, because both are flowing and blowing throughout year in the same direction. That is, and इसके पीछे रीजन क्या है, जोन्स, लैटिट्यूड्स। ओके, सो ये रीजन है इसके पीछे का, यही तो हमें जानना है। अब आपको यहां पर कैसे कैसे आपको आगे प्रेशर सिस्टम में क्या पढ़ना होगा, ये सारी चीजें आपको यहां जाननी होंगी, आपको समझना होगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So that is enough. That is enough. This is not enough. But आप जब भी अगला चैप्टर पढ़ें या कोई भी पढ़े, तो you have to remind, आपको तुरंत याद करना होगा कि क्या क्या पॉइंट कहां से हो रहा था। इधर से जो एयर जाएगी दैट कैसी होगी, कूल एयर होगी, कोल्ड एयर, एंड यहां से वार्म एयर। यहां से आपका ओशियन करंट से आएगा, ये वार्म ओशियन करंट होगी, और जो यहां से आएगी दैट इज कोल्ड ओशियन करंट। तो ये सारा चीज है, सारा डिपेंड इसी पे है। ओके, और इसके पीछे, और जैसे अब इसका क्या होता है, एयर डिफ्लेक्ट्स देयर डायरेक्शन। एयर अपना, वो कौन डिफ्लेक्ट करता है, कोरियोलिस फोर्स। डू यू नो कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स इस पे एयर पे काम करता है। और यहीं पर आप जानेंगे
क्या है, साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स यहां पर बहुत आते हैं इक्वेटर जोन पर, यहां वार्म ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे साइक्लोन कम होता जाएगा, राइट। यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे, यहां टेम्परेट साइक्लोन होगा, बिकॉज यहां पर वाटर है, दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल। यहां पर वाटर नहीं होगा, सो दैट इज टेम्परेट। ओके, सो ये है इसकी जरूरत। सो आई थिंक दिस इज इनफ। तो अब बाकी है आपको, यू हैव टू लिंक, एंड ऑल्सो आई विल टीच यू हाउ टू लिंक। लेकिन मैं कहूंगा कि सारी जियोग्राफी इसी पे डिपेंड है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।